الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ و صدق رسولہ. مشاہدین و مستمعین، آج قرآن کریم کی 30ویں پارے سے جس سورہ مبارکہ پر شرف گفتگو حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سورہ ہمزہ. اس سورہ کریمہ کے مضامین میں ایک مسلم معاشرے کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تربیت کے فیضان کو اپنے دماغ، دل اور عمل کی دنیا میں نور کے طور پر رکھنے والے کے لیے تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اسے اپنے کردار، رویے اور معمولات اور معاملات کی ترکیب اور تشکیل کیسے کرنا ہے. بدایتاً مذمت کی گئی ہے ہمز کی اور لمز کی. اب ہمز اور لمز کیا ہے؟ ہمز اور لمز سے مراد وہ برائیاں، وہ کردار، گفتگو، رویے، مزاج اور سلوک کی درشتگی ہے اور اس کی وہ ناشائستہ پہلو کی صورت ہے جس سے معاشرے کے دوسرے انسان کی عزت نفس، اس کی آبرو اور اس کی معاشرتی حیثیت کو منہدم کرنے میں آدمی کوئی باک نہیں رکھتا تو اس میں جرأت کرتا ہے. آدمی اس میں خوف محسوس نہیں کرتا کہ اس پر دلیری کرنے لگتا ہے. قرآن نے ایسے کردار کی، ایسے کردار والے کی مذمت کی ہے. فرمایا ویلن، بربادی ہے، لکل، ہر اس کے لیے، ہمزتن، لمزتن، جو روبرو عیب جوئی کرے یا پیٹھ کے پیچھے کسی کی بدی بیان کرے. تو گویا اسلام نے اپنے روحانی اور فکری اور رویے کی اور سلوک کی ترجیحات کو اس سے آشکار کیا ہے. اور جس آدمی کے اندر کسی کے سامنے اس کی عیب جوئی اور لمزہ، جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے، ان دونوں عیوب کو جو آدمی اپنے کردار میں پیدا کر لیتا ہے، قرآن نے اس کا ایک تیسرا پہلو بیماری کا بیان کیا ہے. فرمایا یہ وہ آدمی ہے الذی جمع مالا وعددہ. یہ لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرتا ہے، یعنی زبان کا برا ہے، رویے کا برا ہے، سلوک کا برا ہے. کبھی اس کے رویے، مزاج اور سلوک میں اچھائی نہیں ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. قرآن نے اس کے لیے ہلاکت بیان کی ہے. تو گویا اسلام نے خوشحالی اس شخص کے لیے سمجھائی ہے جس کی زبان اچھی ہوگی، جس کا سلوک اچھا ہوگا، جس کا رویہ اچھا ہوگا، جس کے معاملات اچھے ہوں گے، جس کے معمولات اچھے ہوں گے، جو لوگوں کے سامنے بھی اچھی بات کرتا ہوگا، جس کے لیے فرمایا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں کے لیے اچھی بات کرو، ان کے سامنے بھی اچھی بات کرو، ان کی پیٹھ کے پیچھے بھی اچھی بات کرو. اور کمینوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی کوشش کرتے ہیں، کردار کشی کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں کہ تم گالیاں نکالو، لوگوں کو اکساتے ہیں کہ تم دوسرے کو برا جانو اور اس کے اندر برائی تلاش کرو جبکہ اس کے اندر برائی موجود نہ ہو. لہذا یہ کمینہ فطرت لوگوں کا کام ہے جن کے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا، جو رسول کریم سے
दिल के साथ, नजर के साथ, जहन के साथ मुताबकत, रगबत और इत्तिबा और इताअत का जौहर अपने किरदार में पैदा करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये उनकी निशानी है कि वो हुमज में मुब्तला होंगे, वो लुमज में मुब्तला होंगे। और कुरान ने ऐसी आदतें रखने वाले, ऐसी खूब खसलत रखने वालों के लिए वैल बयान की है, हिलाकत बयान की है, बर्बादी बयान की है। फिर ऐसे शख्स की फिर ये भी बीमारी है कि जमा माला, कि वो माल जमा करता है, उसके अंदर फला नहीं है, वो दूसरे के लिए खैर और खूबी की सूरत अपने अंदर महसूस नहीं करता, वो अपने माल से गरीबों की मदद के लिए वो हिम्मत नहीं रखता, वो सलाहियत नहीं रखता, वो दिल नहीं रखता, वो इसके लिए तैयारी नहीं करता। और हां, वो आदमी भी, जो आदमी लोगों में माल बांटता है लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे सखी कहें, लोगों को माल देता है सिर्फ इसलिए कि लोग ये समझें कि वो उनका खैर खा है, हालांकि उसके दिल में इंसानियत की खैर नहीं है, हालांकि उसके दिल में गरीब परवरी नहीं है। जमा अमाला, वो अपने माल को जमा करता है, जमा अमाला व अद्ददा, और हर वक्त वो उसको गिनता रहता है। पता ये चला कि वो इंसान जो अखलाकी पस्ती में मुब्तला हो जाता है और रूहानी तबाही का शिकार हो जाता है और जहनी पसमानदगी में मुब्तला हो जाता है और समाजी तौर पर इस्लाम का जो फलाही मफहूम है वो उस पर असरअंदाज नहीं होता, ऐसे शख्स की दोस्ती किस चीज के साथ हो जाती है? माल के साथ, करप्शन के साथ, बुराई के साथ, बदउनवानी के साथ, नफरत के साथ, हक़्द व कीना के साथ, इंसानियत की तजलील के साथ। कभी वो मर्द होकर औरतों की तजलील करेगा और कभी वो औरत होकर मर्दों की तजलील करेगी। ऐसे लोग हुमज का शिकार हैं, लुमज का शिकार हैं, जमए माल का शिकार हैं। ऐसे लोग माल से दोस्ती करते हैं, माल से मोहब्बत करते हैं, माल से अपना राह रस्म पैदा करते हैं। यहसबु अन्न मालहु अखलदा, ये सारा कुछ इसलिए वो कर रहे हैं कि वो गुमान करते हैं कि उनका माल कभी खत्म नहीं होगा और माल ही से उनकी शोहरत, माल ही से उनकी पहचान, माल ही से उनकी तरक्की और माल ही से उनकी बेहतरी का ताल्लुक है। हरगिज ऐसा नहीं, वरना कारून को देखो, वरना हक के दुश्मनों को देखो, वरना कुरान और सुन्नत की मुखालिफत करने वालों को देखो कि मरने के बाद उनका कहीं नामो निशान है। लेकिन जिन्होंने कुरान से मोहब्बत की, सुन्नत से मोहब्बत की, इंसानियत से मोहब्बत की, फलाह से मोहब्बत की, खैर से मोहब्बत की, उनका आलम क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, हिलियतुल औलिया में आता है कि मदीना शरीफ के फुकरा और मसाकीन को उस दिन खाना नहीं मिला जिस दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ। तो उस दिन लोगों को पता चला कि हमारे दरवाजे पर हमें कपड़े मुहैया करने वाला और हमें खाना देने वाला और हमें उस हाथ तक खबर न होने देने वाला कि कौन पोशीदगी से हमारी मदद करता है, उस दिन उन्हें पता चला कि वो इमाम हुसैन का शहजादा और आबिदीन की जीनत और उलमा की खूबी और ताज हजरत सैयदुस सज्जाद अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की जात थी। तो गौर करें, ये हुजूर के पोते हैं, तो जब पोते की सखावत का ये आलम है तो बाबा की सखावत का आलम क्या होगा? गौर कीजिए, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, आइम्मा अहले बैत और तमाम सूफिया, उनके किरदार को अगर आप देखें, उनके हाथ जारी लंगर जो हैं उनको आप देखें, मखलूक के खुदा को अपने दस्तरखान पे बिठाते हुए उनका नाम नहीं पूछते, उनकी कौम नहीं पूछते, उनकी रंगत नहीं देखते, उनकी बोली के बारे में, फसाहत और बलागत और उनकी लुकनत के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। और इस खाने से उन्हें क्या फायदा होगा, इसकी तमा, हिर्स और इस पर खबरदारी की उन्हें कोई जरूरत और तमा नहीं है। वो लिवजहिल्ला मखलूक के खुदा के साथ भलाई का इरादा रखते हैं। यह है इस्लाम का इंसानियत मोहब्बत का दर्स, इंसानियत के एहतराम का दर्स और इंसानियत का मफहूम, जो आज हमारी सूरह हुमज़ा के मज़ामीन के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, वो बखेर कर रख देने वाली, जरूर फेंक दिया जाएगा उस हुतमा के अंदर जो बखेर कर रख देने वाली है, इंसान के वजूद को रेजा रेजा कर देने वाली है, इंसान के वजूद को भुसन कर देने वाली है।
फौरन हमज के बाद, लुमज के बाद, जमअ माल के बाद, तअद्दुद माल की जो हैबिट है और जो इससे हैबिचुअल हो गया है और जिसको ये गुमान है कि उसके माल की तखलीद है, एवरलास्टिंग, उसका माल खत्म होने वाला नहीं, उसके फौरन बाद कुरान ने कहा कल्ला। वो कल्ला कह के कुरान ने जो ऐबे हुमज है उसकी भी मजम्मत की है और लुमज की भी मजम्मत की है और जमअ माल की जो बुराई है उसकी भी मजम्मत की है और हर वक्त उसको गिनते रहने की आदत की भी मजम्मत की है और जो माल की तखलीद का गुमान है उसकी भी मजम्मत की है। और मजम्मत के बाद जिसके अंदर ये जम पाया गया है, ये बुराई पाई गई है, ये ऐब पाया गया है, ये बीमारी पाई गई है, उसका ठिकाना बयान किया है फिल हुतमा। ये गुमान करने वाला बखेर कर रख देने वाली जगह में गिराया जाएगा। तो गोया जन्नत और अहले जन्नत के औसाफ उसी में पैदा होंगे जिसके अंदर खू व खसलत सुन्नत मुस्तफ़ा पैदा होगी, खू व खसलत अहले बैत रिसालत पैदा होगी, खू व खसलत असहाब मुस्तफ़ा पैदा होगी। हजरत उस्मान जैसा रवैया उसके अंदर पैदा होगा, हजरत मसअब बिन उमैर जैसा रवैया उसके अंदर पैदा होगा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा रवैया उसके अंदर पैदा होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा रवैया उसके अंदर पैदा होगा, हजरत उम्मे सलमा जैसा हाथ जिस औरत के अंदर खू व खसलत के तौर पर पैदा हो गया कि हर वक्त वो गुरबा की, वो मसाकीन की, यतामा की, मुस्तहिकों की इमदाद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खैर और फलाह की जुस्तजू में है, ऐसी औरत उस मकाम और इज्जत के लायक हो गई है कि उसे मोमिनीन का वो आला दर्जा नसीब हो गया है। लिहाजा फरमाया गया वमा अदराका मल हुतमा, आपको क्या मालूम कि बखेर कर रख देने वाली वो जगह क्या है, बखेर कर रख देने वाली वो सूरत क्या है। उससे डरो, उससे बचो, अमलन उसके लिए कोशिश करो कि तुम उससे बच जाओ, अमलन उसके लिए तुम जुस्तजू करो कि तुम उसका ईंधन और उसका शिकार और उसका लुक़मा न बनो। नारुल्लाहिल मुक़दा, ये आग है जो अल्लाह ने भड़काई है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये आग दिलों पर चढ़ती है। फी अमदिन मुमद्ददा, जो लंबे सुतूनों के अंदर बंद की गई है, ये अज़ाब इलाही है। मगर उनके लिए हुतमा है, उनके लिए आग है, उनके लिए जो हुमज का शिकार हैं, जो लुमज का शिकार हैं, जो माल को जमा करने का शिकार है। आओ सूरह हुमज़ा के तनाजुर में अपने मुआशरे को, अपने गिरदोपेश को खूबसूरत करने की कोशिश करो और इसी तरह अपनी भी खुशहाली यकीनी करो। खुशहाली माल की कसरत से नहीं होती, खुशहाली खूबियों की कसरत से होती है। और खूबी क्या है? खूबी वो है कि जिसके पैदा होने से आपको अल्लाह पसंद करे और जिसके पैदा होने से आपके अंदर सुन्नत रसूल की खुशबू पैदा हो जाए। अगर आप मर्द हैं तो आपके अंदर जवाहिर सुन्नत मुस्तफ़ा पैदा हो गए तो आप खूबसूरत हो गए, और अगर आप औरत हैं तो आपके अंदर किरदार खदीजा कुबरा पैदा हो गया, किरदार आयशा सिद्दीका पैदा हो गया, किरदार उम्मे सलमा पैदा हो गया, किरदार ज़हरा बतूल पैदा हो गया, तो आप खूबसूरत हो गई हैं। आप ही वो औरत हैं, आप ही वो मर्द हैं जो अल्लाह ताला अपनी मखलूक के अंदर देख करके उन्हें अपनी बाकी मखलूक के लिए नमूने के तौर पर उनकी खूबियों और तौफीकात में खैर का इजाफा फरमाता है। दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको और हमारे तमाम मुआशरे के अच्छे बनने का इरादा करने वाले मर्दों को और अच्छा बनने का इरादा करने वाली तमाम औरतों को ये जौहर अता फरमाए, ये खूबी अता करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।